Hello बच्चों, let's read this question. Structure 1, 2 and 3. Incorrect statement for the above structure and these are the following options given to us A, B, C and D. So हमें 3 structure given है जिसमें से हमें जो given options है we have to mark the incorrect statement. Now first of all let us see the key concept of this question. जो हमारे पास key concept है इस question का that is the molecular formula and the empirical formula. Molecular formula and empirical formula. What is empirical formula? So let us see empirical formula and molecular formula क्या होता है. जो हमारे पास molecular formula होता है and ये शो करता है कि हमारे पास जो given compound है उसमें कितने number and type of atoms present है. So it represent the number and type of atoms in a compound. और जो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला रहता है एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है वो एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के टर्म में फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया जाता है. सो वी कैन राइट इट रिप्रेजेंट्स द simplest whole number ratio of various atoms present in a compound. Various atoms present in a compound. Let us consider the example. Let us say हमारे पास कोई compound है that is the benzene. Benzene का जो structure होता है that is this. जो हमारे पास रिंग रहती है that is of the 6 कार्बन. 6 कार्बन की हमारे पास रिंग रहती है and 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं and 1 हाइड्रोजन at each कार्बन. यहाँ पर 1 हाइड्रोजन at each कार्बन. Now अगर हम इसे molecular formula लिखना हो then we can see it has 6 carbon means we can write it as C6 and जो हमारे पास second जो हमें दिख रहा है that is the type of the atom that is of the hydrogen and 6 hydrogen present है. So ये रहेगा हमारे पास molecular formula and अगर empirical formula देखें हम तो that is the simplest whole number ratio. So C6H6 है. So अगर हम इसका 6 and 6 का whole number ratio लेंगे then that will be CH only. So ये हमारे पास CH जो है empirical formula हो जाएगा for the benzene. So this is how we write the molecular formula and the empirical formula. Now let us see the given question. जो हमारे पास structure given है first, second and third. Now let us make these structures. So जो हमारे पास first structure है line structure given है इस तरह से हमारे को. We have this line structure and the second structure is this double bond present है and the third structure में हमारे पास एक 6 membered ring है double bond and इस तरह से methyl group present है. Now we will first count the carbon atom then hydrogen atom and उसके अलावा कोई और atom इसमें present नहीं है. जो हमारे पास line structure given है in this we can see यहाँ पर carbon present होंगे इस तरह से. Here it will have carbon atoms in this way. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So 8 carbon atoms है. So C8. Now here we will check the number of hydrogen atoms. जो carbon है वो 4 bond बनाता है which means it is tetravalent and जहाँ पर भी हमें number of atoms given नहीं है then it means वहाँ पर hydrogen atoms present होंगे. So here we can see जो carbon है 4 bond बनाता है
एक बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है, विच मीन्स यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम होंगे। सेकेंड कार्बन पर वी कैन सी 3 बॉन्ड हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है एंड एक हमारे पास फर्स्ट कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। सो 4 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, इट विल नॉट हैव एनी अदर हाइड्रोजन। सो नेक्स्ट इज द थर्ड कार्बन पे भी 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, सो इट विल नॉट हैव एनी हाइड्रोजन। फोर्थ कार्बन वी कैन सी 3 बॉन्ड है, सो इट विल हैव 1 हाइड्रोजन। सो इस पर एक हाइड्रोजन होगा। जो हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज द 5th नंबर का जो हमारे पास कार्बन है, दैट इज फॉर्मिंग 2 bonds, 1 and 2 bond. Now it will have 2 hydrogen. Same way जो 6 कार्बन है that will also have 2 hydrogen, और जो हमारे पास 7 नंबर कार्बन है उसने 6 नंबर कार्बन से एक ही बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, विच मीन्स यहाँ पे 3 और हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। एंड इसी तरह से जो हमारे पास 8th कार्बन है उस पर भी 3 और हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। नाउ वी विल काउंट द हाइड्रोजन एटम। 3 + 3 + 3 9 हो गए, 10 11 12 13 and 14. So it is 14 C8H14 जो है that will be the molecular formula for this. Now let us move to the second structure। जो हमारे पास second structure है in this, जो number of carbon atom है, first of all let us see that first, second, third, fourth, fifth, 6th, 7 and 8। तो कार्बन एटम तो हमारे पास 8 है। नाउ लेट अस सी द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो हमारे पास यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होगा दैट हैज ओनली 1 बॉन्ड, मींस 3 और हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। सेकंड कार्बन पर हमारे पास 2 और हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। एंड जो हमारे पास थर्ड कार्बन है, इन दिस वी कैन सी ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं कार्बन ने, विच मीन्स इट विल हैव नो हाइड्रोजन एटम्स। एंड जो हमारे पास फोर्थ कार्बन होगा दैट विल हैव द 3 हाइड्रोजन एटम्स। एंड फिफ्थ कार्बन जो है हमारे पास, फिफ्थ कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, सो इट विल हैव ओनली 1 हाइड्रोजन एटम। एंड जो हमारे पास 6 कार्बन है, सेम वे 1 हाइड्रोजन एटम होगा। एंड 7th कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन होगा। एंड जो हमारे पास 8th कार्बन है दैट विल हैव 3 हाइड्रोजन एटम। So here we can write H3. Now let us count the number of hydrogen atom. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। So from here we can see 14 hydrogen atoms है। So जो molecular formula है structure 2 के लिए that is C8H14। Now let us see the number of carbon atom in this structure third। जो हमारे पास structure third है in this 1 2 3 4 5 6 7 and 8। So जो carbon atom है हमारे पास that is 8। अब हम देखेंगे इसमें जो other atoms हैं, other atom जो हमारे पास होंगे that will be hydrogen only। So 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे हमारे पास फर्स्ट कार्बन पे। देन सेकंड कार्बन पे हमारे पास 1 हाइड्रोजन होगा, 3 बॉन्ड ऑलरेडी बनाए हुए हैं कार्बन ने। द सेम वे जो हमारे पास थर्ड कार्बन होगा दैट विल हैव 1 हाइड्रोजन, फोर्थ के पास भी 1 हाइड्रोजन, फिफ्थ के पास होंगे हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स, एंड 6 के पास विल हैव 1 हाइड्रोजन एटम। एंड जो हमारे पास 7th नंबर कार्बन होगा दैट विल हैव 3 हाइड्रोजन एटम, एंड 8th के पास भी 3 हाइड्रोजन एटम होंगे। Now let us count the number of hydrogen atom. First, second, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14। So H14। So by this we can see जो molecular formula आया है तीनों structure का that is same। and अगर हम empirical formula निकालना चाहें so that will be the whole number ratio। so it will be C4H7। 8 and 14 को हम कैंसिल कर सकते हैं 2 के टेबल पे, so it will be 4:7। so ये हमारे पास आएगा C4H7 C4H7। तो तीनों स्ट्रक्चर के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला इज सिमिलर। नाउ लेट अस सी द गिवन ऑप्शंस। जो हमारे पास ऑप्शन ए है, इट सेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हैव CnH2n -2 जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला दिया गया है हमें यहाँ पे दैट इज CnH2n -2।
जो हमारे यहाँ पर n है, it represents the number of carbon atom. So here we have already seen जो हमारे पास n है that is 8. तीनों स्ट्रक्चर के लिए n की वैल्यू क्या है 8. So C8H2 multiplied to the 8 minus 2. So ये हमारे पास हुआ C8H16 minus 2. So ये हमारे पास आया C8H14. So by this we can see जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला होगा that is CnH2n minus 2. So जो ऑप्शन ए है वो तो करेक्ट है स्टेटमेंट and we have to mark the incorrect statement. तो हमारा ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा. ऑप्शन बी says first, second and third have same empirical formula. Empirical formula is C4H7 and that is same for first, second and third structure. So हमारे पास जो second और B ऑप्शन है that is the correct one. So incorrect statement choose करना है तो ये आंसर नहीं होगा. C says first and second जो है structure these are identical and homologue of compound 3. For this we should know about the homologous series. Homologous series जो हमारे पास homologous series है it basically represent कि जो हमारे पास कंपाउंड्स होंगे उनका जो फॉर्मूला होगा जनरल फॉर्मूला तो होगा वो सेम होगा बट डिफर ओनली इन कार्बन चेन लेंथ. कार्बन का जो चेन लेंथ होगा वो वेरी करेगा. फॉर दिस लेट अस कंसीडर द एग्जांपल. जो हमारे पास मीथेन है दैट इज CH4 एंड जो हमारे पास इथेन है दैट इज C2H6. ये दोनों आपस में होमोलोगस सीरीज में आते हैं. हाउ? जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला रहता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वी हैव सीन दैट इज CH4 एंड C2H6 एंड दे बिलोंग्स टू द अल्केन. ये दोनों अल्केन है एंड जो जनरल फॉर्मूला रहता है दैट इज CnH2n+2. बट जो यहाँ पे कार्बन चेन लेंथ है दैट इज वेरिंग. यहाँ पर जो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन है दैट हैज बीन इंक्रीज एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी इंक्रीज कर गए हैं. द सेम वे अगर हम इसके आगे एक्सटेंड करके लिखना चाहें फॉर दी 3 कार्बन के लिए दैट विल बी C3H8. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो एक कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन का आ रहा है CH2 एंड CH2. इस तरह से जब हमारे पास सिमिलर चेंज ऑब्जर्व होता है तो वो पूरा हमारे पास होमोलोगस सीरीज ऑब्जर्व होता है. सो बाय दिस वी हैव सीन कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है. अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन जो हमारे पास ऑप्शन सी था इट वाज सेइंग कि जो हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड है वो आइडेंटिकल कंपाउंड है एंड वी कैन सी जो हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर है वी हैव ऑलरेडी सीन कि जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज सेम. बट जो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो जो फर्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर है दैट हैज द ट्रिपल बॉन्ड एंड जो हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चर है दैट हैज द डबल बॉन्ड्स. हियर वी कैन ऑब्जर्व ट्रिपल बॉन्ड है इसमें और इसमें डबल बॉन्ड है. सो ये आइडेंटिकल नहीं है. दीज आर नॉट आइडेंटिकल. डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट है इसमें. एटम्स आर सिमिलर जो बॉन्ड्स हैं दैट आर डिफरेंट काइंड एंड जो हमारे पास दिया गया है एंड होमोलोग ऑफ कंपाउंड 3 या कंपाउंड 3 के ये होमोलोग है. दोनों सेकंड फर्स्ट एंड थर्ड तीनों कंपाउंड्स के लिए फॉर्मूला सेम है. होमोलोगस सीरीज नहीं बन रही है. द फॉर्मूला विच वी हैव ऑब्जर्व्ड इज C8H14. all three structure have the same formula. So by this we can see जो हमारे पास C ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वही हमें चूज करना था. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. जो हमारे पास ऑप्शन डी है इट सेज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तीनों के लिए दैट इज C8H14. सो बाय दिस वी कैन से ऑप्शन सी जो है दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट अस राइट द सेम. फर्स्ट and second are identical and homologue of compound 3 Let us mark the option C as the correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.